9 مئی کے مقدمات میں 196 ملزمان کو سزائیں، فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت دیگر ملزمان کو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق، فاروق حبیب کو بھی 10 سال کی سزا، افضل ساحی کو 3 سال قید، فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو مقدمے سے بری۔ عدالت نے 185 ملزمان میں سے 108 کو سزا سنائی، 77 افراد کو بری کر دیا۔ سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو، لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے۔ تحریک انصاف کا عدالتی فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم سیاست میں تشدد پر یقین رکھتے، پی ٹی آئی کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، پی ٹی آئی آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان جلد کرے گی، پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا پی ٹی آئی کے مزید ارکان کی نااہلی کا اشارہ، کہا پی ٹی آئی کے لوگ بانی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، علی امین گنڈاپور بھی بانی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ اچانک کیوں شروع ہوا؟ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا ایک اور خطرناک منصوبہ منظر عام پر لاؤں گا۔ صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف میں ایک سوال کھڑا ہے۔ 9 مئی پر افواج پاکستان کا دو ٹوک اور واضح موقف، ٹی ٹی آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ 9 مئی صرف افواج کا نہیں، پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے۔ 39 واہ کینٹ میں علیمہ خانم کے وارنٹ ہم نے لیے ہیں، علی امین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں، خورشید خان کے، اور اس کے علاوہ اسد کیسر کے، عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں، اور عارف علوی، حماد اظہر اور ایک ملزم خورشید خان ہے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ آج ہم نے حاصل کر لی ہیں۔ تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری، عارف علوی، شبلی فراز، رؤوف حسن، مراد سعید، فیصل جاوید، علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، حماد اظہر، عمر ایوب، شعیب شاہین، علیمہ خان، شیر افضل مروت اور دیگر شامل ہیں۔ وارنٹ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جاری کی۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کا کہنا ہے کہ 26 نومبر مقدمات پر پولیس نے کام مکمل کر لیا، ملزمان مسلسل عدالتوں سے غیر حاضر ہیں، مزید التوا سے شہادتیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کا کیس، علی امین گنڈاپور کا اشتہاری کا سٹیٹس ختم نہ ہو سکا، وارنٹ گرفتاری برقرار، اسلام آباد کے ٹی سی کا پولیس کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم، پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید خان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، وکلا کی استدعا پر سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، الیکشن کمیشن نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کی روشنی میں سینیٹر اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد خان بھچر کو نااہل قرار دیا تھا۔ سینٹ میں ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخاب، کے پی کے میں سینٹ انتخاب میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ مشال یوسف زئی 86 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئیں، مہتاب ظفر نے 53 ووٹ لیے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے، امریکی صدر نے اعلان کر دیا، کہا پاکستان کے ساتھ مل کر تیل تلاش کریں گے، آئل کمپنی تلاش کر رہے ہیں جو مل کر معاہدے کو آگے بڑھائے، ہو سکتا ہے ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈی تک رسائی کو بڑھانا ہے۔
सरमाया कारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुआहिदा दोनों ममालिक की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात गहरे करने के आज़म का इजहार। पाक अमरीका तिजारती डील पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कहा तिजारती मुआहिदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआहिदा दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में देर पा शराकत दारी को मज़ीद वुसअत मिलेगी। पाकिस्तान का खलाई सफर नई बुलंदी पर। पाकिस्तान ने जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुई। सैटेलाइट प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। सैलाब, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स पिघलने की बरवक्त इतला मिल सकेगी। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम एक बार फिर नई बुलंदियों को छू गया है। ये कामयाबी सपार को और उसकी शानदार टीम की लगन और उम्दगी को जाहिर करती है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ के मरी में डेरे सियासी सरगर्मियां अरूज पर क़याम बढ़ाया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म समेत पार्टी की आला क़यादत, आईनी और कानूनी माहिरीन की मुलाकातें, 27वीं तरमीम पर सलाह और मशवरे जारी। इत्तेहादी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर से भी राबते और मुशावरत का अमल जारी। The way the Hindutva ideology has gained traction and is being propagated in the power corridors, that is the gravest threat that has been posed to this region. And as I said, Pakistan, being desirous of peace, has also proven that if an unprovoked, unjustified war is imposed upon Pakistan, भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा। भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबोताज करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार मुल्क है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को मुख्तलिफ नजरिए से देखना होगा। मोदी को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाली भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियों का शिकार कंपनीज के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए। अमेरिकी शहरियों और इदारों पर इन कंपनीज से लेन देन करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोदी सरकार की नाकामी पर अपोजिशन का सख्त वार। अपोजिशन के मुश्किल सवालात का सामना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी में हिम्मत नहीं कि ट्रंप को झूठा कहे। ट्रंप का नाम तक ना लेना मोदी की कमजोरी जाहिर करता है। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि तीसरा फरीक क्यों और कैसे दरमियान में आया। कराची को उजाड़ दिया गया, रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची में जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। शहर के साथ तसलसल से ज्यादती हो रही है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन फट पड़े, बोले तालीम, तबाह और सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया। अमली तौर पर काम सिर्फ MQM कर रही है। डिजिटल अशिया और खिदमात फराहम करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आए 5% टैक्स खत्म। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गूगल और टेमू समेत अमरीकी और चीनी हाई टेक कंपनियों से खरीदारी करने वाली सार्फिन को फायदा होगा। गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत ने बारिशों के नए स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा और लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेलों और सड़कों की बंदिश का खदशा। सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। पंजाब में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान में बादल जम के बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 289 हो गई। लकी मरवत में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाबू सर चौक में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में चाइना पोर्ट के करीब जोड़े के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूला का भाई वकास ही कातिल निकला।
वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी कत्ल में मुलव्विस। मुलजिम वकास का कहना है कि आसिम और इमरान मकतूल अरसना और साजिद के पीछे कराची गए। आसिम का प्लान था कि शूटर के जरिए कत्ल करवाया जाएगा। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची साथ गया था। नौशहरा के इलाके बहराम कली में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। नौजवान की शनाख्त जवाद के नाम से हुई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुल्जिमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया। कराची में डाकू राज बरकरार। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर डाकुओं ने कैश वैन को लूट लिया। मुल्जिमान 97 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 मुल्जिमान ने वारदात की। कैश वैन बैंक से रकम लेकर हेड ऑफिस जा रही थी। तायरीन के ज़मीनी रास्तों से सफ़र का मामला, वफाक की हुकूमत और मिलत जाफरिया में अहम मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला समेत तमाम मुतालिका हुक्काम और मिलत जाफरिया नुमाइंदगान शरीक होंगे। आज के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। तफ्तान बॉर्डर के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आइंदा इजलास में फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि 2 रियासती हल अब मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं, इसीलिए कनाडा एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। कार्नी ने वाज़ेह किया कि हमास का फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा। अमरीका की मुखालिफत, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास का इनाम करार। गजा में भूख से मजीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 156 हो गई। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मराकज़ पर भी हमले। इमदाद के मुंतज़िर 71 फ़लस्तीनी जान से गए। 195 जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान सहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 104 हो गई। 399 जख्मी। हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री तश्कील देने का फैसला। तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरमीम की जाएंगी। काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी। तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में सूबे में खातिर खा काम किए हैं। सबसे पहले हम बहाल किया और कराची की रौनकें वापस लाए। 10 बरस में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। ट्रांसपोर्ट का मसला मौसर तरीके से हल हो जाएगा। तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉर्ड हिल में कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का कल होगा। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने यूरो हॉकी कप के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। यूरो हॉकी कप 8 अगस्त से 17 अगस्त तक जर्मनी में खेला जाएगा। मर्द और खवातीन के दोनों टूर्नामेंट्स में 8 टीमें शामिल होंगी। पोल की सरफहरिस्त 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वादी नीलम के खूबसूरत सयाहती मुकाम जागरा में स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तक़सीम। और बड़े सग़ीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। 36 साल फिल्मी करियर में रफ़ी ने 25,000 से ज़्यादा गीत गाए। सैकड़ों गीतों को उनकी आवाज़ से अमर बनाया गया। मोहम्मद रफ़ी की फ़नी खिदमत पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारत के आला तरीन एहसास पद्मा श्री से भी नवाजा गया।